Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English School. Okay, so today we will be starting with the chapter number 11, Statistics. So, let's recall the number of pages of a book. Here, a short example is given to you. The number of pages of a book Ninand read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find average number of pages he read every day. Okay, now you know the formula for average, right? Average is nothing but the sum of all scores divided by the total number of scores. Now here it's given 60, 50, 54, 46, 50. These are all the scores. So you will add all this. And then how many scores are given? 1, 2, 3, 4, 5. Right? 5. So you will divide the sum by 5. So then you will get the value for the average number of pages read daily. Okay, so here what we are going to learn, the number of pages read every day in the above example is numerical data. The conclusion that Ninad read about 50 pages every day is drawn from the numerical data. In this way, collecting information regarding certain problem or situation, analyzing this information, and after interpretation drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch of knowledge is known as statistics. Okay, here we are going to study about statistics. So what is exactly statistics? आप किसी भी particular information को क्या कर रहे हो, एक सिचुएशन या प्रॉब्लम से कलेक्ट कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो. ओके, मतलब उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हो, राइट? और उस पर्टिकुलर जो रिजल्ट्स है उसके आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन ड्रॉ, ग्राफ या फिर अदर मीन्स के थ्रू, राइट, रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिस्टिक्स. सो नाउ वी हैव द फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक मीन. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज अर्थमेटिक मीन. We have seen that the average of 60, 50, 54 and 46 and 50 is 52. Now I means ये सारे numbers का average 52, right? This average is called as arithmetic mean. इस average को क्या बोलेंगे हम लोग? Arithmetic mean और simply mean in statistical language. मतलब जब आप average calculate कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Mean और arithmetic mean. To find the mean of numerical data, we add all the scores in the data and divide the sum by total number of squares. Let's study some example. Some aspects of the method. See the following example. Okay, हम लोग एवरेज ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं? जनरली जितना भी स्कोर गिवन है सब टोटल करते हैं, राइट? टोटल करने के बाद उसको किससे डिवाइड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, scores. Okay, so the marks obtained by 37 students in 8th standard in the test of 10 mark are given below. Find the mean of the data. Now here is given कि 37 स्टूडेंट्स ने एक मैथ्स का टेस्ट अटेम्प्ट किया जिसमें जो 10 मार्क का था, उसमें से हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को 37 को हर एक के मार्क्स यहाँ पे हम लोग को इंडिविजुअली गिवन है. हम लोग को फाइंड क्या करना है? मीन फाइंड करना है इस पर्टिकुलर डेटा का. सो अब देखो ये स्कोर्स 37 है, मीन्स आपको ये पूरे क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे. सो देयर इज एन अनदर मेथड. व्हाट इज दैट? नाउ लुक हियर. आप क्या करोगे? सबसे पहले कितने अलग अलग स्कोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे? नाउ हियर इट्स फ्रॉम 2 to 10. you can see, right? 2 से नीचे कोई भी डेटा नहीं है और 10 से हायर कोई भी डेटा नहीं, मतलब 2 से 10 तक के नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सो नाउ राइट डाउन द नंबर्स फ्रॉम 2 to 10. ओके, देन आफ्टर दैट देखो यहाँ पे शॉर्ट नंबर्स थे ना, 5 नंबर्स थे, आप उसको इजीली ऐड कर सकते हो, बट हियर इट्स 37 नंबर्स, राइट? सो अब उसको कैसे ऐड करना है उसका मेथड यहाँ पे गिवन है. ठीक है, अब हम लोग ने क्या करे? 2 to 10 तक के नंबर्स लिख लिए एक कॉलम में. देन हियर tally marks. now what is tally marks? अब आप क्या करोगे? उसको काउंट करोगे. फर्स्ट वन इज 2, तो आप 2 को काउंट करोगे कि 2 कितने टाइम्स आया है पूरे डेटा में, राइट? सो हियर यू विल चेक इट एंड आफ्टर यू विल सी दैट ओनली वन सिंगल टाइम, राइट? सो 2 इज ओनली वन सिंगल टाइम. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी स्कोरिंग दैट मार्क्स, राइट? 1. मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट को क्या मिला है? 2 मार्क मिला है. और उसका टैली मार्क भी क्या रहेगा? ओनली वन सिंगल लाइन. टैली मार्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ vertical line. Okay, now number of marks here is 3. next number क्या है? 3, right? अब 3 का काउंट करोगे तो again you will get that it's 1. तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे और 1 टैली मार्क ड्रॉ करोगे, राइट? देन 4 का आप काउंट करोगे, so you will see that it is occurring 5 times, right? here 4 or 5 टाइम्स अकर हो रहा है. 1 2 3 4 5, राइट? 5 टाइम्स अकर हो रहा है. तो हियर आप यहाँ पे लिखोगे टोटल फ्रीक्वेंसी 5 एंड उसको रिप्रेजेंट करोगे टैली मार्क के थ्रू. नाउ लुक हियर हाउ टू रिप्रेजेंट इट. यू विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस. ओके, कितनी वर्टिकल लाइंस आपको ड्रॉ करना है? 5 है ना. सो 1 2 3 4. नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 नेक्स्ट यू विल ड्रॉ 1 क्रॉस 5, फिफ्थ लाइन, राइट? मीन्स आप क्या करोगे? 4 वर्टिकल एंड 1 क्रॉस लाइन. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 5. ओके, टैली मार्क में आप ऐसे ही करोगे. देन उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट
रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 तो again you will make another set 1 2 3 4 5, right? So here it's the way to represent the tally mark. Okay, next 5 के लिए given है 2, so here 2 lines are drawn. 6 के लिए 5 है again, 7 के लिए 6 है. देखो अब 6 के लिए कैसी लाइंस ड्रॉ की हुई है 1 2 3 4 5 and then one more line, so it's representing 6, right? Then 7 8 9 10. Okay, now here it's completed. नेक्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल क्या देखो, नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम क्या था मार्क्स का, एक्स का, देन टेली मार्क का, देन फ्रीक्वेंसी मींस एफ, देन लास्ट में जो आपका टेबल होगा वो एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स आप क्या करोगे हर एक्स वैल्यू को मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो है उसको क्या करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे. नाउ हियर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20 अप टू सो ऑन. नाउ व्हाट यू विल डू, you will add all the frequencies का समीशन तो आपको पता है 37 स्टूडेंट्स है, राइट? सो यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज 37, देन f इंटू एक्स, ये जो आपने की हो ना मल्टीप्लीकेशन, आपको इसका भी टोटल निकालना है मीन्स 2 + 3 5, 5 + 20 25 35 65 अप टू सो ऑन. सो व्हेन यू विल ऐड ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट 259. आपको क्या मिलेगा 259. ओके, सो नाउ look here, the formula for mean, formula for arithmetic mean is what, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स ये जो आपने पूरा टेबल ये वाला जो पूरा कॉलम बनाया है ना उसका समीशन क्या है 259 डिवाइडेड बाय एन, एन इज व्हाट 37. सो हियर 259 अपॉन 37. तब जब डिवाइड 59 को 37 से, सो यू विल गेट 37 की टेबल में 7th पोजीशन पे आएगा 259. सो यू विल गेट द मीन इज इक्वल्स टू 7. आपको मीन की वैल्यू क्या मिलेगी 7. ओके, सो नाउ these are the steps to find out the arithmetic mean when there are large number of scores. Okay, means 4 to 5 है तो आप easily add करके find कर सकते हो, right? बट यहाँ पे देखो large number of data है तो उस डेटा को कैसे बाइफर्केट करोगे, यहाँ पे आपको गिवन है. सबसे पहले आप क्या करोगे, कितने अलग अलग स्कोर्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर डेटा में, 2 to 10 तक के प्रेजेंट है, फिर 2 कितने टाइम आया है, 3 कितने टाइम आया वो आप लिखोगे. फिर आप क्या करोगे, जो मार्क्स है जो स्कोर है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, सबका टोटल करोगे एंड देन उसको n से डिवाइड करोगे. सिंपल है. नेक्स्ट we'll start with the practice set. Using this method we are going to solve this practice set 11.1. First question, the following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. Okay, अब देखो आपको क्या गिवन है, जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है, सैपलिंग्स छोटे छोटे प्लांट हो गए है ना, प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स. किसने प्लांट किया, 30 स्टूडेंट्स ने प्लांट किया. फिल इन द बॉक्स एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट. आपको फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग. ओके, नाउ हियर नंबर ऑफ सैपलिंग्स मींस 1 2 3 4. ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर बच्चे ने एक सैपलिंग लगाया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 1 सैपलिंग लगाया 4, देन ऐसे कितने स्टूडेंट्स जिसने 2 सैपलिंग लगाया 6, देन 3 लगाने वाले 12 है, 4 लगाने वाले 8. ओके, अब हम लोग को ये टेबल क्या करना है, कंप्लीट करना है. नाउ लेट अस कंप्लीट. इसका होता है f इंटू एक्स का, राइट? मीन्स हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और जो स्कोर है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई. So first one is already done. 1 4 is 4. 2 into 6. 2 6 is 12. So next जो box है उसमें आप क्या लिखोगे, next box में you will write 12. Okay. Then 3 into 12. 12 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 12 3 is 36. Then 4 into 8. 4 को आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है. 4 8 is 32. राइट? नेक्स्ट आपको क्या करना है, टोटल करना है, राइट? ये पूरी फ्रीक्वेंसीज का टोटल. n इज व्हाट, n इज इक्वल्स टू, आपको गिवन ऑलरेडी 30 प्लांट्स है, राइट? तो ना यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 30 30 30. नाउ समीशन ऑफ fi into xi मींस आपको क्या करना है, ये पूरी वैल्यूज का समीशन करना है. नाउ लुक, 4 + 12 16, राइट? 16 + 36 + 32. जब आप 16 36 और 32 को ऐड करोगे, so you will get 84. So here you got 84 and here it's 30.
Next, here it's 84 and it's 30. So formula for mean is what? Summation of fi into xi. Means ये वाले box में क्या आएगा? Summation of fi into xi upon n. Now summation of fi into xi is what? 84. So first आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 84. Then here in the denominator you will write 30. Now you will divide 84 and 30 and you will get the exact value. Now let us divide. 84 को क्या करना है आपको? 30 से divide करना. So now 30 1 जा 30. 30 के टेबल में 84 तो नहीं आएगा, राइट? 30 की टेबल में सेकेंड पोजीशन पे 60 आएगा, राइट? 30 2 जा 60. नाउ रिमेनिंग नंबर 84 में से आप 60 माइनस करो, राइट? 84 में से आप 60 माइनस करोगे तो 24 मिलेगा, राइट? अब 30 के टेबल में 24 नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? डेसिमल लगाओगे, 0 इंक्रीज करोगे. नाउ हियर इट्स 240. नाउ 240 कब आता है 30 के टेबल में? 8 पोजीशन पे, राइट? सो हियर इट्स 38 are 240. So your final answer is what? 2.8. Means the average number of trees planted is what? 2.8. Okay, got it?